Hello everyone, welcome to another session of animal tissue, and in this video today we will be talking about last type of animal tissue, that is nervous tissue. I hope you are all fine and doing well in biology. As far as origin is concerned, nervous tissue is ectodermal in origin. If we recall origin of another animal tissue, epithelial tissue is ectodermal, mesodermal as well as endodermal in origin. Connective tissue and muscular tissue are mesodermal in origin, and today's tissue which we are going to discuss is nervous tissue, and that is ectodermal in origin. Now moving on to some of the features of nervous tissue. Nervous tissue का basic function क्या है कि whenever there is a change in any external situations, there is any stimulus is there, suppose chemical, mechanical stimulus is there, in response to that stimulus, this tissue will generate impulse. And with the help of nerves, these impulses carried to brain and spinal cord. In the brain and spinal cord, this information is processed, and after processing, impulse is sent to effector organs. जैसे मान लीजिए you are doing cycling और आप साइकिल चला रहे हैं, सामने से कोई व्हीकल आपको दिखाई देता है, तो इस केस में जो आपकी आईज हैं वो रिसेप्टर सेल्स हैं, दे विल रिसीव द स्टिमुलस कि some another vehicle is coming in front of you and you have to take care. Now from eye through optic nerve image will go to brain. In the brain impulse is analyzed एंड उसके बाद जो मैसेज है वो इम्पल्स की फॉर्म में इफेक्टर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके हैंड्स पे और आपके जो है हैंड लिम्स पे, और उसके अकॉर्डिंग या तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे या आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, वॉट एवर कंडीशन इट इज. Nervous tissue basically contain two main cell type. One is neuron, one is glial cell. Glial cells are actually housekeeping cell. Housekeeper का काम होता है घर में जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, जो सामान जहाँ है उसको मेंटेन करना. All these activities are carried out by housekeeper. So glial cells nervous tissue में supporting cells हैं, housekeeping cells हैं. ध्यान रहे, they are not sensory, they are non-sensory cells. Non-sensory cells हैं, do not conduct any impulse. Supporting cell हैं, they will provide support to the neuron. इसके अलावा वो न्यूरॉन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे. न्यूरॉन्स do not have direct blood supply, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. इवन जो माइलिन शीथ प्रेजेंट है एक्सोन के बाहर वो भी ग्लियल सेल्स सीक्रेट करेंगी. इसके अलावा जो ग्लियल सेल्स हैं वो फेगोसिटिक इन एक्शन है, वो माइक्रोब्स को एनगल्फ करेगी. वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे. सो ग्लियल सेल्स आर हाउसकीपिंग सेल, सपोर्टिंग सेल ऑफ द न्यूरॉन, नॉन सेंसरी सेल है, नॉन कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, और नंबर ऑफ द ग्लियल सेल इज मच more than the neuron. 10:1 का रेशियो होता है. For every 10 glial cell there is a single neuron. Neuron, these are the cells which are mainly responsible for generating electrical impulse. On receiving a stimulus, neuron develop impulse, and that impulse is carried from one part of body to another part through nerve fiber. आपके सामने डायग्राम है न्यूरॉन का. You all are well aware about this structure. न्यूरॉन में अगर हम देखें तो आपको मिलेगी सेल बॉडी also known as cyton or perikaryon. From the cell body arise two type of process. One is dendrites, one is axon. Dendra का मतलब होता है tree like branches हैं. So dendrites क्या हैं? These are many short highly branched process which arise from cell body. Axon is a single long unbranched process which arise from cell body. So cell body, neuron is a structural and functional unit of nervous tissue. Neuron has cell body which has nucleus, all the cell organelle, Nissus granule are present, neurofibrils are present. Neurofibrils will provide support to the neuron. Nissus granule क्या है? These are actually part of endoplasmic reticulum coated with ribosome. They are concerned with protein synthesis. Nissus granule cell body के साथ साथ dendrites में भी मिलेंगे. So this is, ध्यान रहे, neuron is nothing but a specialized cell. इसमें ये बाहर processes हैं. Dendrites का काम होगा, they will receive impulse from another neuron और from outside environment. जैसे अगर हमारी स्किन में है तो स्किन के अंदर जो अगर कोई
टेम्परेचर की फीलिंग है, हॉट है, कोल्ड है, प्रेशर की फीलिंग है, पेन की फीलिंग है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टिमुलस है दे कैन बी परसीव्ड बाय आवर स्किन. तो कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट्स रिसीव करेंगी. एंड आफ्टर रिसीविंग द स्टिमुलस, डेंड्राइट उस इंपल्स को किधर भेजेंगी? सेल बॉडी की तरफ. सो डेंड्राइट विल कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी. एक ही डायरेक्शन में है ये इंपल्स का मूवमेंट. सेल बॉडी से हमेशा इंपल्स कहाँ जाएगी? एक्सोन में. ये इधर डेंड्राइट्स की तरफ नहीं जाएगी. सो सेल बॉडी कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड्स द एक्सोन. डेंड्राइट कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी. एक्सोन कंडक्ट इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी. अगर एक न्यूरॉन की बात करें तो एक्सोन से इंपल्स सेल बॉडी से दूर की तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी. सो दिस इज द बेसिक सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन. एक्सोन की हम बात करें, एक्सोन सिंगल है, लॉन्ग है, हाईली अनब्रांच्ड है, अराइज फ्रॉम सेल बॉडी. टर्मिनल एंड्स पर, एक्सोन के टर्मिनल एंड्स पर इट गोट हाईली ब्रांच्ड. दीज आर नोन एज एक्सोन टर्मिनल और टीलोडेंड्रिया. These axon terminals are having swelling at the tip. ये टिप पे swellings हैं. इन swellings को हम कहेंगे synaptic knob. And these synaptic knob are having neurotransmitter which are responsible for sending impulse from one neuron to another neuron. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स जाएगी वो एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन के थ्रू होगा. सो टर्मिनल एंड पर एक्सोन इज हाईली ब्रांच और जो ब्रांचिंग है दे आर हैविंग स्वेलिंग एट द टिप. दिस इज नोन एज synaptic knob and synaptic knob are having neurotransmitter. If we talk about structure of axon, in axon actually long part है and axon may be surrounded by myelin sheath. अगर myelin sheath है कहेंगे माइलिनेटेड और अगर माइलिन शीथ नहीं है उस एक्सोन को कहेंगे नॉन माइलिनेटेड. न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी एंड इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल फॉर रिसीविंग इम्पल्स एंड जनरेटिंग अनदर इम्पल्स. सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. माइलिन शीथ हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. In this slide we will try to understand how a myelin is synthesized. Just have a look at this diagram. दिस इज एक्सोन. दिस येलो स्टिक जो है वो एक्सोन है और एक्सोन के अराउंड क्या प्रेजेंट है? शेवान सेल. एक्सोन इज सराउंडेड बाय ए सेलुलर लेयर विच इज नोन एज न्यूरेलीमा. आप ऐसे समझेंगे कि आपके हाथ में एक पेंसिल है और पेंसिल में को आपने फिंगर से चारों तरफ कवर कर लिया है. पेंसिल को आपने फिंगर से चारों तरफ कवर कर लिया है. तो आपकी अगर 4 फिंगर है तो आप ये समझो ये 4 सेवान सेल है. यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेंसिल और ये आपकी 2 फिंगर्स है. दिस इज फिंगर 1 एंड दिस इज 2. एक्सोन इज सराउंडेड बाय, एक्सोन इज पार्ट ऑफ सेल न्यूरॉन. एक्सोन की मेम्ब्रेन को कहेंगे एक्सोलीमा. एक्सोलीमा इज सराउंडेड बाय ए सेलुलर लेयर विच इज नोन एज न्यूरेलीमा. न्यूरेलीमा इज मेड अप ऑफ शेवान सेल. यहाँ तक क्लियर है? एक्सोन इज सराउंडेड बाय सेलुलर लेयर न्यूरेलीमा एंड न्यूरेलीमा इज मेड अप ऑफ शेवान सेल. यहाँ देखिए 2 शेवान सेल है. दिस इज वन, दिस इज अनदर. अब होगा क्या? दिस इज शेवान सेल. ये शेवान सेल एक फैटी सब्सटेंस माइलिन सिक्रीट करेगी और ये माइलिन कंसेंट्रिक लेयर में एक्सोन के अराउंड डिपोजिट होता चला जाएगा. सो ये देखिए ये न्यूरेलीमा है. न्यूरेलीमा अंदर क्या डिपोजिट कर रही है? माइलिन, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहाँ आ जाएंगे? पेरिफेरी पर, बाहर की तरफ. तो जो अंदर फैटी सब्सटेंस है उसे तो हम कह रहे हैं माइलिन शीट. बाहर जो साइटोप्लाज्म विद मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, उसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूरेलीमा. अब जैसे मैंने फिंगर के लिए आपको कहा था कि आपने पेंसिल के चारों तरफ अपने फिंगर्स को रैप कर रखा है. तो जहां पर 2 फिंगर्स हैं उन दोनों फिंगर के बीच के पार्ट को, ये देखिए इस पार्ट को हम कहेंगे नोड, नोड ऑफ रेनवियर. एंड हेयर माइलिन शीट इज एब्सेंट. Neurelima is made up of शेवान सेल. These शेवान सेल will secrete myelin sheath और जो myelin sheath है वो concentric लेयर में होगा in each cell. तो 2 सेल के बीच का जो स्पेस है उसको हम कहेंगे node of Ranvier where myelin sheath is
एब्सेंट। सो माइलिन इज सिक्रीटेड बाय, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, माइलिन इज सिक्रीटेड बाय शेवान सेल, लेकिन कहाँ? इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या होगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स अराइज होंगी, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में जो भी नर्व फाइबर हैं, अगर उनमें माइलिन सिंथेसिस है तो कौन सी सेल सिक्रीट करेंगी? शेवान सेल। Medulated nerve fiber are having myelin sheath and this myelin is synthesized by Schwann cell. ध्यान रहे, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में भी न्यूरिलीमा होगी, वहां पर भी शेवान सेल होंगी, बट हियर शेवान सेल डू नॉट सिक्रीट माइलिन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सीएनएस में माइलिन कौन सिंथेसाइज करेगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के नर्व फाइबर में माइलिन इज सिक्रीटेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। दीज आर ग्लियल सेल, शेवान सेल भी ग्लियल सेल की टाइप है, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी ग्लियल सेल है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर ऑल्सो कवर्ड बाय न्यूरिलीमा। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर कवर्ड बाय न्यूरिलीमा। In myelinated nerve fiber, Schwann cell will secrete myelin sheath, whereas in non-myelinated nerve fiber, Schwann cell do not secrete myelin sheath. ये तो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जैसे क्रेनियल नर्व है, नर्व विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल नर्व है, नर्व विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, हमारे हर ऑर्गन में नर्व सप्लाई है। तो ये जो नर्व्स हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अलावा, दे आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में माइलिन इज सिक्रेटेड बाय शेवान सेल। शेवान सेल आर टाइप ऑफ ग्लियल सेल, हाउसकीपिंग सेल। अगर हम बात करें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स की, तो वहां पर माइलिन कौन सिक्रीट करेगा? अनदर टाइप ऑफ ग्लियल सेल विच इज नोन एज ओलिगोडेंड्रोसाइट। यस, type of fiber on the basis of presence or absence of myelin. If myelin sheath is there, fibers are known as myelinated or medulated nerve fiber. If myelin is there, myelin है medulated, myelin नहीं है non medulated और non myelinated nerve fiber। ये देखिए, ये जो बीच का ब्लैक पार्ट है, दिस इज एक्सोन। एक्सोन की मेम्ब्रेन को कहेंगे एक्सोलीमा, और एक्सोलीमा के अराउंड ये शेवान सेल है, एंड दीज शेवान सेल, ये जो पार्ट है, दिस इज लेंथ वाइज पूरा यहां से लेके यहां तक, ये सब जो पार्ट है, दिस इज एक्चुअली माइलिन। माइलिन सिक्रीट होने की वजह से साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कहाँ आ गए हैं? पेरिफेरी पर। ये देखिए यहां पर, यहां से लेके यहां तक एक शेवान सेल है, यहां से लेके यहां तक दो हैं, और ये तीसरी आधी दिखाई गई है। सो दो सेल के बीच में देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ माइलिन। दिस इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। In the region of node of Ranvier, myelin sheath is absent, but neurylema is present. So in medulated nerve fiber, axon is surrounded by axolema, then myelin sheath, then neurylema. तीन लेयर हैं, axolema, myelin sheath, then neurylema. नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर की बात करें तो यहां पर होगा एक्सोलीमा, देन न्यूरिलीमा। कौन सी शीथ नहीं है? माइलिन शीथ नहीं है। नो डाउट हियर शेवान सेल आर देयर, but here Schwann cell do not secrete myelin sheath. Medulated nerve fiber are found in brain, spinal cord, cranial nerves, spinal nerves. Medulated nerve fiber are there. Non-medulated nerve fiber are found in autonomic nervous system. जो हार्ट, ब्रेन, किडनी या डिफरेंट टाइप के जो है ऑर्गन्स है, उनको जो नर्व सप्लाई है वो नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के थ्रू होगा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। सो दिस इज टाइप ऑफ नर्व फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। टाइप ऑफ नर्व फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, वेदर दे आर सेंसरी और मोटर। सेंसरी, एफरेंट, ए फॉर आना, ई फॉर एग्जिट, ए फॉर आना। सेंसरी का मतलब है ये इंफॉर्मेशन लेकर आएंगी कहां? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। सेंसरी नर्व फाइबर ब्रिंग
impulse from sensory organ to CNS. जो नर्व फाइबर इंफॉर्मेशन लेकर आए उन्हें तो हम क्या कहेंगे, सेंसरी, और जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर जाए इफेक्टर ऑर्गन में, इफेक्टर ऑर्गन और मसल और ग्लैंड्स, उनको हम कहेंगे इफरेंट नर्व फाइबर। ए फॉर आना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो आए दैट इज एफरेंट, और ई फॉर एग्जिट, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बाहर जाए दैट इज efferent nerve fiber. Now nerve, what is nerve? Nerve is a group of muscle fiber. जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, मसल इज ए ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर बंडल में अरेंज्ड है, इसी तरह नर्व इज ए ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर एंड नर्व फाइबर आर अरेंज्ड इन बंडल। हर नर्व फाइबर के बाहर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, इंडिविजुअल नर्व फाइबर के बाहर कनेक्टिव टिश्यू लेयर को कहेंगे एंडोन्यूरियम। सुबह हमने लास्ट वीडियो में हमने वर्ड यूज किया था एंडोमाइसियम। सो एंडोन्यूरियम नर्व फाइबर के बंडल के बाहर होगी पेरिन्यूरियम, और पूरी मसल के बाहर क्या होगा, एपिन्यूरियम। सो नर्व इज ए ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। अब नर्व भी तीन तरह की है। अगर एक नर्व में सारे फाइबर सेंसरी हैं तो उसको कहेंगे ऑप्टिक नर्व, सारे फाइबर अगर इफरेंट है तो उसको कहेंगे मोटर नर्व, और अगर एक नर्व में कुछ फाइबर सेंसरी हैं कुछ मोटर हैं उन्हें हम कहेंगे मिक्स्ड नर्व। जैसे ये नर्व जो है हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, देयर आर 12 क्रेनियल नर्व्स। ऑप्टिक नर्व आई से ब्रेन को जाती है, इसके बाद ऑल्फैक्टरी नर्व नोज से ब्रेन को जाती है, ऑडिटरी नर्व ईयर से ब्रेन को जाती है, ऑल आर सेंसरी। मोटर नर्व में है वो नर्व जो ब्रेन से आई मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगी, ओक्यूलोमोटर है, ट्रोक्लियर है, राइट, एब्ड्यूसेंस है। इसी तरह मिक्स्ड नर्व है, वेगस है या ट्राइजेमिनल है, ऑल दीज आर मिक्स्ड नर्व्स। Another criteria to classify neuron is on the basis of number of processes. Multipolar neuron, many processes, many dendrites and single axon, जो अभी हमने डिस्कस किया। मल्टीपोलर न्यूरॉन आर मोस्ट कॉमन न्यूरॉन इन आवर बॉडी। बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन means the neuron are having only two process, one axon, one dendrites. Example is very important, they are found in retina of eye and olfactory epithelium. Olfactory epithelium is present in nose, retina is layer of the innermost layer of the eye. So eye, retina and olfactory epithelium of nose are having bipolar neuron. Pseudo unipolar neuron, pseudo means false. Actually from these type of neurons are having only single process, but later on it will divide into two, out of which one act as dendrites, another act as axon. So these neurons are pseudo unipolar neuron. They are found in dorsal root ganglia of spinal cord. Spinal cord के dorsal root ganglia में मिलेंगे। Unipolar neuron, these neurons are having only one process. Such type of neuron are found in vertebrate embryo. So this is type of neuron on the basis of number of process. Now coming to supporting cell of the neuron, neuroglia. Neuroglia are also known as glial cells or simply glia. Non-neuronal cell है, means they are non-nervous cell. They are not involved in generating electrical impulse. Housekeeping cells हैं ये, और बेसिकली 6 टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स आर प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम। कुछ सीएनएस में प्रेजेंट हैं, कुछ पीएनएस में प्रेजेंट है। सीएनएस मीन्स सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पीएनएस मीन्स पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इज एस्ट्रोसाइट। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। एस्टर का मतलब होता है स्टार लाइक अपीयरेंस, ये एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं। दीज एस्ट्रोसाइट सेल्स विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, बिकॉज जो ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन इज देयर। और ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या है कि डायरेक्ट नर्व ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में नहीं है। ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में हैं। दे विल ड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लाई इट टू न्यूरॉन। बेनिफिट क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जो न्यूरॉन है दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ सर्टेन हार्मफुल बैक्टीरिया
और जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हैं विच मे डैमेज द ब्रेन, वो भी डायरेक्ट ब्लड से कहाँ नहीं आ पाएंगे, न्यूरॉन में। सो न्यूरॉन जो है वो न्यूट्रिशन किसके थ्रू रिसीव करेंगे, एस्ट्रोसाइट सेल्स के। और फीचर्स भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो ग्लियल सेल्स हैं वो कौन सी हैं, एस्ट्रोसाइट। जो हमने डायग्राम लिया है दैट इज वंडरफुल डायग्राम टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये अरेंज्ड है। ये देखिए, एस्ट्रोसाइट सेल्स आर अरेंज्ड विद पैरेलल टू न्यूरॉन एंड दे विल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा दिस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट, हमने पीछे बात की थी। सीएनएस में माइलिन शीट कौन सिक्रीट करेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये देखिए, ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में क्या सिक्रीट करेगी, माइलिन शीट। जबकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर माइलिन शीट अगर प्रेजेंट है तो दैट इज सिक्रेटेड बाय शेवान सेल। सो जस्ट हैव ए लुक एट द नेम एस्ट्रोसाइट, ये एस्ट्रोसाइट है। ओलिगोडेंड्रोसाइट, दीज आर ओलिगोडेंड्रोसाइट। माइक्रोग्लियल सेल, ये वर्ड हमने पहले भी यूज किया है कनेक्टिव टिश्यू में। माइक्रोग्लियल सेल्स आर एक्चुअली फेगोसिटिक सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। अकेली ऐसी सेल हैं विच आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू की, नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन बट माइक्रोग्लियल सेल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स का डायग्राम भी हम आगे शो करेंगे। एपेंडाइमल सेल्स एक्चुअली ब्रेन की जो कैविटीज होती हैं उनको लाइन करती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरल कैनाल है वहां पर भी, नॉट न्यूरल कैनाल, सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को हम कहेंगे सेंट्रल कैनाल, उसकी कैविटी को भी कौन लाइन करेगा, एपेंडाइमल सेल्स। दीज सेल्स आर सिलिएटेड। Satellite cell, Schwann cell, so all these are 6 type of glial cells: astrocyte, oligodendrocyte, microglial cell, ependymal cell, satellite cell, Schwann cell. Yes, this picture show type of neuroglia in central nervous system and peripheral nervous system. CNS की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में 4 तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। वन इज एपेंडाइमल सेल। These ependymal cells are ciliated and they will line the cavity of brain. ब्रेन में जो फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। और कौन सा फ्लूइड होता है ब्रेन में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो कैविटी ऑफ द ब्रेन को लाइन कौन करेगा, एपेंडाइमल सेल। एक्चुअली दे आर एपिथेलियल सेल्स। जैसे अगर हम बात करें कोई भी होलो ऑर्गन, उसको कौन लाइन करता है, एपिथेलियम। सो यहाँ पर एपेंडाइमल एपिथेलियम इज प्रेजेंट विच इज हैविंग एपेंडाइमल सेल्स। So ependymal cells will line cavity of the brain as well as spinal cord. Oligodendrocyte हम पढ़ चुके हैं CNS में, ये वो सेल हैं जो माइलिन सिक्रीट करेंगी। एस्ट्रोसाइट, ये वो सेल हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। माइक्रोग्लिया, ये वो सेल्स हैं विच आर फेगोसिटिक इन एक्शन, माइक्रोब्स को एनगल्फ करेंगी एंड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। पीएनएस में जो सेल है, वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज शेवान सेल। शेवान सेल का काम है, इट इज प्रेजेंट अराउंड एक्सॉन एंड इट विल फॉर्म माइलिन शीट इन फाइबर्स ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सैटेलाइट सेल, सैटेलाइट सेल एस्ट्रोसाइट के पैरेलल चलेगी। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, एस्ट्रोसाइट। सेम वही काम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर कौन करेगा, सैटेलाइट सेल। यस, कुछ और फीचर्स पढ़ते हैं इन सेल्स के। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी टू द न्यूरॉन इन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, मेंटेन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। व्हाट डज इट मीन, ये जो एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं दे विल फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। व्हाट डज इट मीन, कैपिलरीज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली न्यूरॉन में डिफ्यूज नहीं हो पाएंगी। एस्ट्रोसाइट सेल मीडिएटर का काम करेंगी, जो भी मटेरियल ब्लड से लेना है पहले एस्ट्रोसाइट लेंगी, फिर वो न्यूरॉन को सप्लाई करेंगी। सो दे विल मेंटेन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। सबसे ज्यादा अगर हम देखें कौन सी ग्लियल सेल सबसे ज्यादा नंबर में है, दैट इज एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, जैसे एस्ट्रल रेज अगर हम पढ़े माइटोसिस मियोसिस में, एस्ट्रोसाइट्स आर स्टार शेप्ड ग्लियल सेल्स जिनमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो वहां से निकल रहे हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। शेवान सेल्स, शेवान सेल्स क्या हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या सिक्रीट करेंगी, माइलिन शीट,
एस्ट्रोसाइट ध्यान रहे CNS में है, शेवान सेल PNS में है, सैटेलाइट सेल अगेन PNS में है. They will provide nutrients and structural support to neuron. Microglial cells phagocytic in action है. They will carry out process of phagocytosis. न्यूरॉन्स के अंदर कोई किसी भी सेल की डेथ हो गई है या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना है तो उसमें कौन पार्ट लेगा? माइक्रोग्लियल सेल्स. ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS में मिलेंगी और इन सेल्स का काम है माइलिन शीट सीक्रेट करना. कई बार हमने ये पॉइंट रिपीट किया है. CNS में माइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड PNS में माइलिन इज सीक्रेटेड बाय शेवान सेल.